یسایہ اس کا 62 باب ہے اور 62 باب کی 4 آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی۔ کہیں سب آپ میرے ساتھ مل کر کہیں، تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خامد والی ہوگی۔ ہاللویا ہاللویا۔ یہ کلام آج صبح جب میں نے بائبل کھولی تو یہ آپ کے لیے خدا نے دیا۔ کس کے لیے دیا؟ اس جگہ کے لیے خدا نے دیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آج آپ میں سے کسی خاص بہن کے لیے ہے، کسی خاص بھائی کے لیے ہے، اور یہ نبوتی کلام ہے، اور یہ نبوت سے بات ہو رہی ہے۔ جیسے پرانے عہد نامے میں نبی نبوت کرتے تھے، تو یہ نبوتی کلام ہے، اور خدا آپ میں سے کسی سے کہہ رہا ہے، خدا آپ سب سے کہہ رہا ہے کہ آگے کو تو متروکہ نہ کہلائے گی۔ آئیں دعا کریں، آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند اپنے زندہ کلام کے وسیلے سے، اپنے منہ کی باتوں کے وسیلے سے، خداوند تو آج مجھے اور بہنوں بھائیوں کو، اس جماعت کو، اس جگہ کو خاص برکت دے، اور کلام کثرت سے نازل کر، اور خدا مجھے سنانے کا فضل دے، اور سننے والوں کو سننے کا فضل دے، تاکہ سن کر بڑی برکت پائیں۔ اور خدا یہ جماعت، یہ گھر، یہ جگہ، یہ ایریا، یہ لوگ، اور خداوند جو پہلے آتے تھے وہ بھی برکت پائیں، اور آئندہ یہ جماعت بہت بڑی ہو جائے، اور کلام خداوند بارش کی طرح برسے اور اثر کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ ہاللویا۔ آج میرا ٹاپک ہوگا، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ سب نے میری طرف دھیان رکھنا ہے، نہ بچوں کی طرف، نہ ادھر ادھر کہیں اور آپ کا دھیان ہو، خاص کر بہنوں کا۔ تو جب آپ سنیں گے غور سے تو آپ کو برکت ملے گی۔ میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ آگے کو تو متروکہ نہ رہے گی۔ متروکہ کا مطلب ہوتا ہے ترقی ہوئی، چھوڑی ہوئی۔ بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بہن، کوئی بھائی یہ فیل کرتا ہے، خاص کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، اکثر ہی ہم اپنے گھروں میں یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ مجھے خدا نے چھوڑ دیا ہوا ہے، خدا کو میں یاد نہیں، خدا کو میری یاد نہیں آتی، مجھے خدا جو ہے وہ بھول گیا ہے، اور خدا کو میری پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اکثر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم اکثر بے دل ہو جاتے ہیں، ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟
अपने आप को बेकीमत समझते हैं, बेकदर समझते हैं। हम अपने आप को समझते हैं मेरी केड़ी को कदर कर है, मेरी केड़ी कोई कीमत है, मैं तो कुछ भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अक्सर आप में से कई हैं जो ऐसे सोचते हैं। मैं रूह से ये बात भी नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि हम में से अक्सर ऐसी बातें सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं भला की हूँ। लेकिन आज मैं आपको खुदा के कलाम के वसीले से खुदा की सोच और खुदा का दिल आपके सामने खोल रहा हूँ। खुदा ऐसा नहीं आपके बारे सोच रहा, आप खुद अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन याद रखें खुदा की सोच आपके बारे में कुछ और है। खुदा आपके बारे में कुछ और सोच रहा है। उसका मंसूबा आपके लिए अलग है। उसका मंसूबा आपके लिए अच्छा मंसूबा है। उसका मंसूबा आपके लिए बहुत ही प्यारा मंसूबा है और वो आपको आपका नाम लेकर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके नाम से वाकिफ है। कभी आपने सोचा इस बात को कि खुदा मेरा नाम जानता है? मेरा नाम लेकर कहें खुदा तुझे प्यार करता है। खुदा तुझे प्यार करता चले आंखें बंद कर कहें तुझे नहीं, कहें मुझे। कहें सोनिया, खुदा ने सॉरी कहें सोनिया या जो भी आपका नाम है, कहें खुदा तुझे प्यार करता है। खुदा मुझे प्यार हाँ, जैसे मैं कहूँ मेरा नाम दुमियानस है, मैं कहूँगा दुमियानस खुदा तुझे प्यार करता है। आप भी अपना नाम लेकर कहें, कहें ना, कहें खुदा अपना नाम लेकर कहें तुझे प्यार करता है। खुदा आपको याद कर रहा है और खुदा आपको प्यार करता है। हर रोज मैंने आपको तरीका बताया है। हर रोज आप सुबह उठ के और दिन में कई दफा अपना नाम लेकर कहें कि खुदा तुझे प्यार करता है। मैं अपना नाम लेकर ये कहता हूँ कि खुदा तुझे, अपने आप को मैं कहता हूँ दमियानुस खुदा के बंदे, खुदा तुझे प्यार करता है। और जब आप हर रोज ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, आपके हालात ही बदल जाएंगे, आपका घर ही बदल जाएगा, आपके घर में फर्क आ जाएगा, आपके घर में तब्दीली आ जाएगी, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, आपकी सोच में तब्दीली आ जाएगी। अक्सर हम अपने आप को घटिया ख्याल करते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोग आपको घटिया ख्याल करते हैं। तो जब लोग आपको घटिया ख्याल करते हैं तो आप समझते हैं, हम समझते हैं कि शायद खुदा भी मुझे घटिया ख्याल करता है, खुदा भी मुझे कमतर ख्याल करता है। लेकिन याद रखें खुदा लोगों जैसा नहीं है। हालेलुया, खुदा लोगों जैसा नहीं है। और यशाया की किताब उसके 55 बाब में लिखा है, मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात जैसे नहीं है। खुदा की सोच जो है वो हमारी सोच की मानद नहीं है। खुदा की सोच अलग सोच है, खुदा की सोच फर्क सोच है और खुदा की सोच बुलंद सोच है। और वो अपने बच्चों के लिए क्या करता है? वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। हालेलुया। मुझे बताएं आप में से कितने भाई और बहनें हैं जो ये सोचते हैं कि खुदा मेरा बाप है? अपना हाथ बुलंद करें। अगर आप ये सोचते हैं कि खुदा आपका बाप है, अगर आप ये ख्याल करते हैं कि आप खुदा की बेटी हैं और खुदा का बेटा हैं,
तो फिर आपका बाप, आपका खुदा आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचता है। मुझे ये एक बात बताएं, हमारे जो दुनियावी बाप होते हैं, क्या पास्टर यूनुस अपने बेटे के लिए, सैम के लिए बुरा सोच सकता है? बताएं, बात करें मेरे। क्या भाई सलीम अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए बुरा सोच सकता है? बोले भाई, बताएं भाई, बोले भाई, मेरी बात का जवाब भी दें, क्योंकि हम कलाम सुन रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें करें। तो क्या जब एक जमीन में जो बाप रहता है, जमीन पर जो बाप रहता है, आप जो बाप है या माँ है, अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते, तो क्या आसमानी बाप आपके लिए बुरा सोच सकता है? कभी भी नहीं सोच सकता। वो हम सबसे बेहतरीन बाप है, वो हम सबसे अच्छा फादर है। और जब हमारे जमीनी बाप जो हैं, जब हम उनसे रोटी मांगते हैं तो वो हमें रोटी ही देते हैं, पत्थर तो नहीं देते। क्या जब हम अपने जमीनी बाप से रोटी मांगते हैं तो कभी उन्होंने कहा है कि ईटा खा रहा है? कभी कहते हैं रोड़े खा रहा है? कहते हैं कभी? ऐसा नहीं कहते, बल्कि वो हमें चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रोटी कहीं ना मिले, वो क्या करते हैं? हमें ला कर देते हैं। हालेलुया। पास्टर यूनुस अपने बच्चों के लिए सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, दोपहर को अपनी ड्यूटी से आकर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, फिर अपने जॉब पे चले जाते हैं। सारा दिन वो बच्चों के लिए क्या कर रखते हैं? मसरूफ रहते हैं। और अभी एक बाप की मानद अपने इन बच्चों के पास वो आ गए हैं ताकि उन्हें रूहानी खुराक दें। हालेलुया। हमारा रूहानी बाप जो है, हमारा जो आसमानी बाप है, वो इससे भी अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी सोच से बढ़कर अच्छा है। वो आपको, उसने कभी भी तर्क नहीं किया। आगे को आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि खुदा मुझे भूल गया है या खुदा ने मुझे तर्क कर दिया है। आए खुदा के जिंदा कलाम में से एक हवाला हम देखेंगे। ये यशायाह की किताब है और उसका 49 बाब है और 49 बाब की 14वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन मुझे बातों की आवाज आ रही है, लेकिन सिय्योन कहती है यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया है और खुदावन मुझे भूल गया है। सिय्योन क्या कहती है? खुदावन ने मुझे तर्क कर दिया है। यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया है और खुदावन मुझे भूल गया है। और खुदा आगे से सवाल करता है, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? कभी जो है कि एक निक्के जो बच्चे ने ओदी माँ भूल जाए? भाई बोला करें ना, जवाब नहीं आप लोग देते। कभी ये हुआ है कि छोटे से बच्चे को उसकी माँ भूल जाए? यहाँ पर माएँ बैठी हैं, माएँ जवाब दें, क्या छोटे से बच्चे को माँ भूल सकती है? नहीं भूल सकती। बल्कि माएँ क्या करती हैं? इबादत में भी खुदा को भूली हुई हैं, लेकिन बच्चों को नहीं भूलती, बच्चों को याद रखती हैं। ठीक है कि नहीं? इबादत में भी तवज्जो नहीं देती, बच्चों की तरफ ही तवज्जो देती हैं। तो उसका ये मतलब है कि माएँ बच्चों को कभी भी नहीं भूलती। आगे खुदा कहता है, खुदा फरमाता है, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, शायद वो भूल जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आप में से हर एक से कह रहा है कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हमारा यहोवा खुदा, हमारा पाक खुदा कभी भी ईमानदार को नहीं भूलता। वो हमेशा ईमानदार को याद रखता है, बल्कि वो ईमानदार से कहता है, क्या कहता है, हम आगे 16वीं आयत को भी पढ़ेंगे। खुदावंद फरमाता है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद फरमाता है, मैंने अपने हाथों पर क्या किया हुआ है, तेरी तस्वीर बनाई हुई है। होती है। खुदावंद के हाथ पर हमारी तस्वीर बनी हुई है, बनी नहीं बल्कि खोदी हुई है। खुदावंद के कैमरे में नहीं है। हम अपने अजीजों की तस्वीर कहाँ पर रखते हैं? कैमरे में, नेट पर रखते हैं या फेसबुक में होती है। लेकिन खुदा हमारी पिक्चर जो है वो मोबाइल के अंदर नहीं रखता। वो कहाँ रखता है? अपने हाथ के ऊपर। और वो क्या करता है, हाथ, उसका हाथ जो है उसके बदन से अलग नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपका हाथ आपके बदन के साथ जुड़ा हुआ है, खुदावंद का हाथ भी उसके साथ रहता है। और जब उसका हाथ उसके साथ है तो वो फिर आपकी तस्वीर को क्या करता है, वो हर वक्त अपने हाथ पर देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबकी तस्वीर जो है वो खुदावंद के हाथ पर है। पेंसिल से बनाई हुई नहीं है, पेंट से भी बनाई हुई नहीं है कि मिट जाए, मिटने वाली नहीं बनाई। उसने, यीशु मसीह ने कैसे तस्वीर अपने हाथ पे बनाई है? अपने खून से। हालेलुया, अपने खून से ऐसी गाड़ी मिटाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है और खोद कर बनाई है कि ये कभी मिट नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमेशा खुदावंद की याद में रहते हैं। आप हमेशा खुदावंद की निगाहों के सामने रहते हैं। ईमानदार जो है वो हमेशा खुदावंद की निगाहों के सामने रहता है। आप में से हर एक खुदावंद की निगाहों के सामने रहता है और खुदावंद की आंखें जो हैं वो आपकी तरफ लगी रहती हैं। ज़बूर नंबर 34 में लिखा है कि खुदावंद की निगाह जो है वो किस पर है? खुदावंद की निगाह सादिकों पर है। खुदावंद की निगाह ईमानदारों की तरफ है। वो हर वक्त जो है वो आपकी तरफ देख रहा होता है। काश के हम भी हर वक्त जो है वो खुदा की तरफ देखें, लेकिन हम हर वक्त खुदा की तरफ नहीं देखते। हम किसकी तरफ देखते हैं? हम टीवी की तरफ देखते रहते हैं, हम मोबाइल की तरफ देखते हैं, हम दुनिया के कामों की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन खुदा हमारी तरफ देखता रहता है। वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमारी मदद करता है। और खुदा जो है वो हमारी हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। लेकिन याद रखें, एक बात बड़ी ही खास मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी तरफ देखे और आप महसूस करें कि वाकई वो आपकी तरफ देख रहा है, तो आप भी उसकी तरफ ध्यान करें, आप भी उसे देखना शुरू करें, आप भी उसकी आवाज को सुने। खुदावंद के रहम को, उसके फजल को बेकार ना करें।
जब आप खुदा की तरफ देखेंगे तो वो पहले ही आपकी तरफ देख रहा है, आंखों से आंखें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप खुदा की तरफ देख रहे होंगे, जब वो आपकी तरफ देख रहे होंगे, जब वो आपकी तरफ देख रहा होगा, तो फिर क्या होगा? आपकी आंखें खुदावंद की आंखों से मिल जाएंगी। और फिर क्या होगा? मोहब्बत हो जाएगी, प्यार बढ़ जाएगा, दोस्ती बढ़ जाएगी, कुर्बतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप खुदा के करीब आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात आज याद रखें, कमी खुदा में नहीं, कमी हम में है कि हम खुदा की तरफ जाते नहीं, हम खुदा की तरफ देखते नहीं, हम खुदा को टाइम इतना नहीं देते। हम दुनिया की मसरूफियत में, दुनिया के कामों में, अपने घर के कामों में लगे रहते हैं। जो खुदा चाहता है हम वो नहीं करते। इसलिए हम उन वालिदैन की मानद हैं जो सारा दिन अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ लगे रहते हैं? मोबाइल पर लगे रहते हैं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप घर में इंतजार करते रहते हैं। बच्चे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आया। बाप को ये कहकर जाते हैं, पापा मैं थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो 2, 3, 4 घंटे आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बाप घर में इंतजार कर रहा होता है, माँ घर में इंतजार कर रही होती है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी है। हम उससे कहते हैं हम असी त्योहार को ही आवांगे, हम इतवार को ही जाते हैं। वो भी ध्यान पूरी तरह खुदा की तरफ नहीं लगाते, ध्यान कहीं और ही होता है। लेकिन आज हमने इस बात को सीखना है और हमने खुदा से बरकत लेनी है, क्योंकि खुदा ने कहा है। आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि खुदा हमारे अपने कलाम में फरमाता है कि तू आगे को मतरूका नहीं कहलाएगी। कई बहनें जो हैं वो बेवाएं हो जाती हैं, उनको उनके शोहर छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप को क्या समझती है? रद्द की हुई समझती है, मतरूका समझती है। तो खुदा उन बहनों को भी और उन भाइयों को भी जिनकी बीवियां नहीं, और उन बहनों को जिनके शोहर नहीं, यूं कहता है कि मैं तेरा शोहर, मैं तेरा खुदा बनूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा संभालने वाला हूं। तू बेशोहर नहीं है, मैं तुझे प्यार करता हूं। जैसे कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, बल्कि तू प्यारी और तेरी जमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदाबंद तुझसे खुश है। खुदाबंद आपसे खुश है, वो आपकी तरफ देख रहा है, वो आपको प्यार करता है। कभी भी अपने आप को रद्द किया हुआ और अकेला महसूस ना करें, खुदाबंद की मोहब्बत को महसूस करें। बेशक लोग आपको प्यार नहीं करते, लेकिन एक है जो आपको प्यार करता है, और वो आपका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम खुरूज की किताब के यीशुआ और उसके पहले बाब में भी खुदावंद यीशुआ से वादा करता है, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझे कभी। खुदा ईमानदार से, मसीही से कभी दस्तबरदार नहीं होता और ना कभी उसे छोड़ता है। खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ता। आपने खुदा को छोड़ा हुआ है, आपने खुदा को तर्क किया हुआ है, उसने आपको तर्क नहीं किया हुआ। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप तर्क किए हुए ना रहें, आप मतरूका ना रहें और खुदावंद आपके करीब रहे, तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अभी अपने खुदावंद के साथ अपना रिश्ता कायम करें। खुदा से माफी मांगें
जो वक्त आपने खुदा को नहीं दिया, जो आप खुदा से दूर रहे, सब अपनी आंखें बंद करें, सोचें, गौर करें कि आप कितनी देर खुदा से दूर रहे। आपने खुदा को रद्द किया, वो आपका इंतजार कर रहा था, आपने उसको जवाब नहीं दिया, अपने खुदा से माफी मांगी, तो आप रद्द किए हुए नहीं रहेंगे। आज ही वो आपको कबूल करेगा, आज ही वो आपको बरकत देगा, आज ही वो आपको नई बरकत अता करेगा। क्योंकि उसने आपका नाम अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, वो आपका प्यार करता है। आए हम दुआ करेंगे। उससे पहले कि मैं दुआ करूं, जिन भाइयों ने और बहनों ने आज खुदावंद से रिश्ता जोड़ने के लिए इरादा कर लिया है, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया था और अभी माफी मांगी है, कि वो आइंदा खुदा के साथ रिश्ता रखेंगे, खुदा के साथ राब्ता रखेंगे, वो खुदा से हमेशा प्यार करेंगे, वो अपनी आंखों को अपना हाथ खड़ा करें। जिन्होंने जो खुदा से राब्ता रखना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें, डरे नहीं, परेशान ना हो। 1 2 3 4 लोगों ने सिर्फ अपना हाथ खड़ा किया है, और ये बस खुदा से 5 लोग खुदा से राब्ता रखना चाहते हैं। मैं इनके लिए बल्कि आप सब के लिए दुआ करूंगा। जितनों ने खुदा तुझे कबूल किया, तेरा कलाम सुना, हाथ खड़े किए, खुदा तुम्हें बरकत दे। आज वो माफी मांगते हैं, अपना दिल तुझे देना चाहते हैं, तू भी खुदा इन्हें ब्लेस कर, तू भी इनको बरकत दे, और आगे को मत रुका रह रहें, बल्कि तेरा फजल, तेरा हाथ उन पर हो, इनकी जिंदगियों पर हो, इनके घरानों पर हो, और खुदा इनके घरों से, इनकी जिंदगियों से कमियां जाती रहें, और खुदा ये रद्द किए हुए ना रहें, बल्कि खुदा तुझे अपनी जिंदगियों में महसूस करें। तू इन्हें बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।